اللہ ان ہڈیوں کو اس شہر کو موت کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا وقت کی رفتار کو کبھی روکا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان سو رہا ہو اور ابدیت کا بہاؤ اس کے پاس سے گزر جائے مگر اسے اس کا احساس بھی نہ ہو؟ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے حیرت انگیز سچے واقعے میں داخل ہوں گے جہاں سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ دوپہر کو تھکے ہوئے سو جائیں اور جب بیدار ہوں تو آپ کو معلوم ہو کہ زمین پر 100 سال گزر چکے ہیں۔ آپ کے بچے اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کا جانا پہچانا شہر اب اجنبی بن چکا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ایک حیرت انگیز واقعہ قیامت تک انسانوں کے لیے نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ آئیے ہم اس قدیم زمانے میں چلتے ہیں جہاں کھنڈرات کے درمیان دوبارہ زندگی یعنی باس کا ایک عظیم واقعہ رقم ہوا۔ یہ واقعہ بہت زمانہ پہلے پیش آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عظیم نبی حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن سفر پر نکلے۔ ان کے سفر کا ساتھی ان کا نہایت وفادار سواری کا جانور ایک گدھا تھا اور زادمرہ کے طور پر ان کے پاس 2 ٹوکریاں تھیں، ایک ٹوکری میں انجیر تھی اور دوسری میں مزیدار انگور۔ لمبے سفر کی تھکن اور دوپہر کی سخت گرمی نے انہیں کچھ تھکا دیا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے وہ ایک ایسی بستی سے گزر رہے تھے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ مورخین کے مطابق یہ بستی بیت المقدس یعنی یروشلم تھی جسے ظالم بادشاہ بخت نصر کے خوفناک حملے نے زمین بوس کر دیا تھا۔ حضرت عزیر نے ارد گرد دیکھا تو ہر طرف خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، کہیں بھی کسی انسان کا نشان نہیں تھا۔ گھر ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، چھتیں دیواروں پر گری ہوئی تھیں، ادھر ادھر بے شمار لوگوں کی لاشیں، ہڈیاں اور ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ شہر جو کبھی زندگی سے بھرپور تھا آج ایک خوفناک مردہ بستی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل غم سے بھر گیا۔ دوپہر کی سخت دھوپ سے بچنے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے میں پناہ لی، اپنی سواری گدھے کو قریب ہی باندھ دیا۔ بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے انہوں نے ٹوکری سے کچھ انگور نکالے۔ انہوں نے انگوروں کو ایک پیالے میں نچوڑ کر ان کا رس نکالا اور اپنے ساتھ موجود سخت روٹی کو اس رس میں بھگو دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب روٹی نرم ہو جائے گی تو وہ اسے کھائیں گے۔ روٹی کے نرم ہونے میں کچھ وقت درکار تھا، اسی دوران وہ تھکن دور کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گئے۔ ان کی نگاہیں اب بھی اس وسیع تباہی پر جمی ہوئی تھیں۔ ہزاروں لوگوں کی سڑی ہوئی ہڈیاں جو مٹی میں ملی ہوئی تھیں، انہیں دیکھ کر ان کے دل میں اللہ کی قدرت اور قیامت یعنی دوبارہ زندگی کے بارے میں ایک گہرا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور دل میں سوچا، شاید خود سے کہا، اللہ ان ہڈیوں کو اس شہر کو موت کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہاں ایک بات کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ ان کا سوال دراصل اللہ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی گہری خواہش سے پیدا ہوا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہا تھا، اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ اللہ کس طرح اس وجود کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا جو مٹی میں مل چکا ہے۔ وہ روٹی تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے مگر رب العالمین انہیں اور پوری دنیا کو ایک عظیم سبق دینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے اس سادہ سوال کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک زندہ معجزہ بنا دیا جائے۔ وہ روٹی اب کبھی نہ کھائی جا سکی۔ پلک جھپکنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے موت کی ٹھنڈی چھاؤں ان کے جسم پر اتر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ ویران کھنڈرات کے درمیان ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے وہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ زمین اپنی رفتار سے چلتی رہی مگر ان کے لیے وقت وہی رک گیا اور یوں ایک طویل اور پراسرار انتظار کا آغاز ہوا جو تاریخ کے صفحات میں ایک ناقابل فراموش باب بن گیا۔ اس سنسان دوپہر میں حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ایک گہری طویل خاموشی چھا گئی۔ ان کا بے حرکت جسم ان ویران کھنڈرات میں پڑا رہا۔ زمین اپنی ابدی گردش کے مطابق گھومتی رہی مگر اس خاص مقام پر وقت کا حساب بالکل بدل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی ایسی چادر میں ڈھانپ لیا کہ نہ کسی درندے، نہ کسی کیڑے اور نہ کسی مسافر کی نظر ان پر پڑی۔ دھوپ، بارش، آندھی اور طوفان ان پر سے گزر گئے مگر ان کے جسم پر ایک خراش تک نہ آئی۔ وہ ایک معجزانہ حفاظت میں محفوظ رہے، انسانی نظروں سے اوجھل۔ یوں دن راتوں میں، راتیں مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ نہ 1 سال، نہ 2 سال، نہ 10 سال، اسی طرح پورے 100 سال گزر گئے۔ اس طویل صدی کے دوران زمین پر بہت بڑی تبدیلیاں آئیں۔ بنی اسرائیل کا وہ تباہ شدہ شہر جو کبھی قبرستان بن چکا تھا آہستہ آہستہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ لوگ واپس آنے لگے، نئے گھر بنے اور ویران میدان دوبارہ رونق اور ہلچل سے بھر گئے۔ حضرت عزیر کے ہم عصر لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔
उनके बच्चे जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हुए, फिर वो भी बुढ़ापे के बोझ तले दब कर वफात पा गए। उनकी अगली नस्ल यानी पोते पोतियां जवान हो गए। मगर हैरत की बात यह है कि इस तमाम शोर-ओ-गुर्रा और तब्दीली के दरमियान शहर के एक कोने में इसी टूटी हुई दीवार के पीछे हजरत अजीर अलैहिस्सलाम वैसे ही लेटे रहे जैसे वो 100 साल पहले लेटे थे। अलबत्ता इस मुजिज़े के साथ साथ कुदरत का आम उसूल भी जारी रहा। उनके साथ मौजूद मजबूत गधा वक्त के बेरहम असर से जिंदा न रह सका। खुराक और देखभाल न होने की वजह से वो गधा मर गया, धूप में जलता और बारिश में भीगता रहा। दिन बदन इस गधे का गोश्त गिल सड़कर मिट्टी में मिलता गया। इसकी खाल खत्म हो गई, सिर्फ कुछ सफ़ेद चमकती हुई हड्डियां इसी जगह बाकी रह गईं। इसी वक्त एक ही जगह पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर मौजूद थे। एक तरफ अल्लाह के नबी का जिस्म बिल्कुल सही सलामत और ताज़ा था और दूसरी तरफ उनकी सवारी एक हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो चुकी थी। ये जिंदगी और मौत का एक अजीब साथ साथ मौजूद होना था जिसे अल्लाह ताला ने एक अजीम मकसद के लिए तरतीब दिया था। जब 100 साल मुकम्मल हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस महबूब बंदे को दोबारा बेदार करना चाहा। अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आसमान से इन खंडात में नाजिल हुआ। रब्बो अजीम के हुक्म से हजरत अजीर के जिस्म में दोबारा रूह लुटा दी गई। सबसे पहले उनका दिल हरकत में आया, उनकी रगों में खून की गर्दिश शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पलकें खिल गईं। यूं 100 साल की तवील नींद टूट गई। उन्होंने अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गए। उनके जिस्म में कोई सस्ती न थी, ना बुढ़ापे का कोई निशान और ना ही लंबी नींद की थकन। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो अभी अभी दोपहर की एक मामूली नींद से बेदार हुए। जागने के बाद उन्होंने आसमान की तरफ देखा। जब वो लेटे थे तो दोपहर का वक्त था, सूरज ऐन सर पर था और अब उन्होंने देखा कि सूरज कुछ मगरिब की तरफ ढल चुका है और शाम की हल्की रोशनी फैल रही है। इतने तवील वक्त गुजरने का कोई तसव्वुर उनके जहन में न आया। इसी लम्हे एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके सामने जाहिर हुआ और पूछा, तुम यहाँ कितनी देर ठहरे रहे? सूरज की हालत को देखकर बिल्कुल आम अंदाज में अंदाज लगाया। उन्होंने सोचा कि मैं दोपहर को सोया था और अब शाम हो रही है, यानी चंद घंटे ही गुजरे हैं या ज्यादा से ज्यादा एक दिन। चुनांचे उन्होंने जवाब दिया, एक दिन दिन का कुछ हिस्सा। उनके सादा जवाब को सुनकर फरिश्ते ने उन्हें वो हैरान कुन खबर दी जिसके लिए ना वो तैयार थे और ना ही कोई इंसान। फरिश्ते ने कहा, नहीं, तुम्हारा ख्याल गलत है, बल्कि तुम इस हालत में पूरे 100 साल गुजार चुके हो। ये सुनकर हजरत अजीर अलैहिस्सलाम की आंखों में हैरत की एक गहरी लहर दौड़ गई। 100 साल, मगर उनका जिस्म, उनके कपड़े, उनके एहसासात, सब कुछ तो बिल्कुल नया था। इतना तवील अरसा कैसे गुजर गया? यहीं से उनकी आंखों के सामने अल्लाह की बेपाया कुदरत का एक जिंदा मुजाहरा शुरू हुआ। 100 साल का जिक्र सुनकर हजरत अजीर अलैहिस्सलाम हैरत में डूब गए। इंसानी जहन फितरी तौर पर मंतिक पर यकीन करता है, इसलिए एक सदी तक बगैर खाए पिए जिंदा रहना नाकाबिले यकीन लगता था। उनकी इस हैरत को दूर करने और अल्लाह की कुदरत की निशानी दिखाने के लिए फरिश्ते ने कहा, अगर तुम मेरी बात पर हैरान हो तो अपने सामने रखे हुए खाने और मशरूब को देखो। उन्होंने अपने प्याले की तरफ देखा। क्या अजीब मंजर था! जो अंगूर का रस उन्होंने 100 साल पहले निकाला था और जो सख्त रोटी उन्होंने इसमें भिगोई थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। ना वो खराब हुई, ना उसके जायके खुशबू में कोई फर्क आया। अंगूर का रस इतना ही साफ और ताज़ा था जैसे अभी अभी दरख्त से अंगूर तोड़कर निकाला गया हो। हालांकि आम तौर पर खाना चंद घंटों में खराब हो जाता है, मगर ये खाना 100 साल तक खिले मैदान में रहने के बावजूद बिल्कुल ताज़ा था। ये अल्लाह के हुक्म से था कि यहाँ वक्त का पहिया थम गया था। वो अभी खाने की ताजगी देखकर हैरान ही हो रहे थे कि इसी लम्हे फरिश्ते ने उन्हें हकीकत के दूसरे रुख की तरफ मुतवज्जे किया। फरिश्ते ने कहा, अब अपने गधे को देखो। हजरत अजीर ने पीछे मुड़कर देखा तो कांप उठे। वहाँ कोई गधा मौजूद न था, सिर्फ कुछ बोसीदा और चमकदार सफ़ेद हड्डियाँ पड़ी थीं। वक्त की बेरहम गिरफ्त की वजह से उनकी मजबूत सवारी के गधे का गोश्त, खाल और रगें गिल सड़कर मिट्टी में मिल चुकी थीं। हड्डियां भी पुरानी होकर बेतरतीब बिखरी हुई थीं। इसी जगह इसी हुआ में खाना बिल्कुल महफूज और ताज़ा था, लेकिन जानवर का जिस्म मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। ये मुतजाद मंजर देखकर उन्होंने अल्लाह की लामहदूद कुदरत का एक नया जलवा देखा, लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। अल्लाह ताला हजरत अजीर के इस पुराने सवाल का अमली जवाब दिखाना चाहते थे कि अल्लाह मर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अमली तौर पर फरिश्ते ने इस मुर्दा गधे की हड्डियों को पुकारा। अल्लाह के नबी की आंखों के सामने एक नाकाबिले यकीन दोबारा जिंदगी का अमल शुरू हो गया। वो बेपलक झपके देखते रहे। अचानक बगैर किसी के छुए जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां हरकत करने लगे। तेज हुआ की रफ्तार से एक हड्डी दूसरी से जड़ने लगी।
टांगों की हड्डियां, पसलियां, रीढ़ की हड्डी सब एक दूसरे के साथ जड़ गईं और खड़खड़ाहट की आवाज के साथ बिल्कुल दुरुस्त ढांचा बन गया। पलक झपकते ही एक मुकम्मल ढांचा खड़ा हो गया। फिर मजेजाती तौर पर इस ढांचे पर सुर्ख गोश्त चढ़ने लगा, रगें और शरियाने जाल की तरह फैल गईं। इसके बाद गोश्त पर खाल चढ़ गई और देखते ही देखते गधे के जिस्म पर बाल भी अल्फाग आए। चंद ही लम्हों में मिट्टी के ढेर से एक मुकम्मल जिंदा गधा वजूद में आ गया। फिर अल्लाह ताला ने इसमें रूहून की। मुर्दा गधा अचानक लरज उठा, उसके कान हिलने लगे और वो जोर से आवाज के साथ चला। तारीखी रवायत के मुताबिक गधा इसलिए चीखा कि इसे लग रहा था कि शायद क़यामत कायम हो गई है और इसे हिसाब के लिए दोबारा जिंदा किया जा रहा है। मुर्दा हड्डियों से जिंदा जानवर को अपनी आंखों से देखकर हजरत अजीर अलैहिस्सलाम के दिल का हर जर्रा कांप उठा। उनका ईमान और यकीन एक नई बुलंदी पर पहुंच गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, अब मैं खिली आंखों से जान गया हूँ और दिल से यकीन रखता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह वक्त से बाला है। वो चाहे तो एक लम्हे में अदम को वजूद दे सकता है और चाहे तो वजूद को फना कर सकता है। इस गहरी हकीकत को दिल में समेटकर वो अपने अगले सफर के लिए तैयार हो गए, यानी अपनी पहचानी हुई बस्ती की तरफ। हजरत अजीर अलैहिस्सलाम अपने नए जिंदा गधे पर सवार हुए और अपनी बस्ती की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही वो शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो रुक गए। ये उनका अपना शहर नहीं था। गुज़िश्ता 100 सालों में शहर की सड़कें, घर और माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो उधर उधर देखते रहे लेकिन उन्हें कोई भी पहचाना चेहरा नजर न आया। वो अपने ही शहर में बिल्कुल अजनबी बन चुके थे। उन्हें अपने घर का रास्ता ढूंढने में काफी जिदोजहद करनी पड़ी। आखिरकार याददाश्त की मदद से वो एक खस्ता हाल घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक इंतहाई बूढ़ी औरत बाहर आई। इसका जिस्म बुढ़ापे के बोझ से झक चुका था। वो बीनाई खो चुकी थी और फालिज की वजह से सही तरह हरकत भी नहीं कर सकती थी। तारीख के मुताबिक इस वक्त इस औरत की उम्र तकरीबन 120 साल थी। 100 साल पहले जब हजरत अजीर अलैहिस्सलाम घर से निकले थे तो इस औरत की उम्र सिर्फ 20 साल थी और वो इस घर की एक वफादार खादमा थी। हजरत अजीर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए बूढ़ी औरत, क्या तुम बता सकती हो कि ये अजीर का घर है? जब इस अजनबी की जुबान से अजीर का नाम सुना तो बूढ़ी औरत कांप उठी। इसने गहरी आह भरी और रोते हुए कहा, हाँ, ये अजीर का घर है, लेकिन अब तो मुद्दत गुजर गई है कि कोई उनका नाम भी नहीं लेता। लोग उन्हें भूल चुके हैं। आज तुमने इतने अरसे बाद उनका जिक्र करके इस पुराने शख्स की याद ताज़ा कर दी है। ये सुनकर हजरत अजीर अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में कहा, मतरूमे ही अजीर अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने मुझे 100 साल तक मुर्दा हालत में रखा, फिर मुझे जिंदा करके तुम लोगों में वापस भेज दिया। बूढ़ी औरत हैरत और यकीन के दरमियान डोलने लगी। इसने कहा, अजीर तो कोई आम इंसान नहीं थे। वो ऐसे नेक इंसान थे कि उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती थी। अगर वो किसी बीमार के लिए दुआ करते तो वो सेहतयाब हो जाता और अगर किसी मुश्किल के वक्त दुआ करते तो मुश्किल दूर हो जाती। अगर तुम वाकई अजीर अलैहिस्सलाम हो तो अल्लाह से दुआ करो कि मेरी बीनाई वापस आ जाए और मैं तुम्हें देख सकूं। हजरत अजीर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए। उन्होंने दुआ की और मोहब्बत से अपना हाथ इस औरत की आंखों पर फेराया। अल्लाह के हुक्म से पलक झपकते ही इसकी आंखों की तारीकी खत्म हो गई और उसकी बीनाई वापस आ गई। फिर उन्होंने इसके फालिज के लिए दुआ की और देखते ही देखते अल्लाह के हुक्म से वो औरत खुद अपने पांव पर खड़ी हो गई। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो जोर से चलाई, मैं गवाही देती हूँ कि अब वाकई अल्लाह के नबी हजरत अजीर अलैहिस्सलाम हैं। इसके बाद वो बूढ़ी औरत हजरत अजीर को लेकर बनी इसराइल के एक बड़े मजमा में पहुंची। इस मजमा में एक इंतहाई बूढ़ा शख्स बैठा था जिसकी उम्र इस वक्त 118 साल थी। वो हजरत अजीर का अपना बेटा था और उसके सामने खड़े थे इसके अपने वालिद, जो 40 साल के मजबूत नौजवान जैसे दिखाई दे रहे थे। बाप उम्र में बेटे से भी छोटा नजर आ रहा था। ये दुनिया की तारीफ का एक नाकाबिले यकीन मंजर था। मजमा में मौजूद लोगों ने उन्हें देखकर शक का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इतने अरसे बाद अजीर का वापस आना नामुमकिन है। फिर हजरत अजीर के बेटे आगे आए और कहा, मेरे वालिद के दोनों कंधों के दरमियान एक खास सिया निशान यानी तुल था। उन्होंने देखा और खुशी से चलाए, ये वाकई मेरे वालिद हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आम लोग फिर भी मुकम्मल तौर पर यकीन न कर सके और उन्होंने एक मुश्किल शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि बादशाह बख्त नसर के हमले में हमारी मुक़द्दस तौरात की तमाम कापियां जलकर राख हो गईं। हम में सिर्फ हजरत अजीर ही थे जिन्हें पूरी तौरात ज़बानी याद थी। अगर अब वाकई वही हैं तो हमें वो गुमशुदा तौरात सुनाई। ये एक मुश्किल इम्तिहान था, मगर जिसके साथ अल्लाह की मदद हो इसे क्या खौफ हो सकता है। अल्लाह ताला ने हजरत अजीर के दिल में नूर हिदायत डाल
دیا تورات کی ہر آیت ان کی یاد میں تازہ ہو گئی. انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پوری تورات زبانی سنائی اور دوبارہ تحریر بھی کی. ان کے اس معجزاتی علم اور نشانی کو دیکھ کر تمام مجمع نے ایک زبان ہو کر کہا یہی اللہ کے محبوب نبی ہیں جنہیں اللہ نے 100 سال بعد دوبارہ دنیا میں بھیجا ہے. اس طرح ایک قوم کا کھویا ہوا ایمان اور کتاب دوبارہ قائم ہو گئی. پیارے ناظرین، ہم نے تاریخ کے صفحات میں حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز واقعہ سنا جہاں اللہ کی لامحدود قدرت اور اس کے مضبوط حکم کی عظمت ظاہر ہوئی. مردوں کو زندہ کرنا اور وقت کو روک دینا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے.